गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अ पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 6। Good morning student. Today my topic name is the monkey and the crocodile. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. "Hello there," said the monkey. "Do you live in this river? Would you like to eat some fruit?" "Good morning," replied the crocodile politely. "I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit." ये एक समय की बात है कि किसी नदी किनारे एक बंदर ने फलों से भरे हुए पेड़ पर वो रहता था। उसने वहाँ अपना घर बना लिया था। वह इस घर में बड़ी मौज मस्ती करता था, अपनी पसंद के फल फ्रूट खाता था। बंदर खुश था पर वह अकेला था। उसे एक साथी की कमी महसूस होती रहती थी जिससे वह बात कर सके, मिल बांट कर खा सके फल, पर आसपास उसका कोई साथी नहीं था और वहाँ पर और कोई बंदर भी नहीं था। तभी एक दिन उसने एक मगरमच्छ को नदी के किनारे आता देखा। उसने कहा, "हेलो," बंदर बोला, "क्या आप इस नदी में रहते हैं? क्या आप कुछ फल खाना पसंद करेंगे?" तो मगरमच्छ ने भी उसे बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, "मैं तो यहाँ अपने तथा अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में आया था। आप कितने अच्छे हैं कि आपने मुझे फल देने को बोला।" The monkey plucked some fruit the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. "Thanks," he said. "May I have some on my next visit?" "Certainly, as many as you like, and some for your wife too," said the monkey. "Do come again. I am rather lonely here." The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. बंदर ने जो कि पास की शाखा से ही कुछ फल तोड़कर उसने नीचे फेंक दिए, जो मगरमच्छ को बहुत टेस्टी लगे। मगरमच्छ ने कहा, धन्यवाद बोला, और वह बोला कि उसने पूछा कि क्या आप अगली बार भी मेरे यहाँ आओगे फल लेने? अवश्य, उसने कहा, तुम जितना चाहो अपने तथा अपनी पत्नी के लिए फल ले जाना। ये चीज़ बंदर ने मगरमच्छ को बोली। उसने कहा, आना अवश्य, क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए अब रोज़ आने लगा और वह उसे रोज़ फल खाने को देता। कुछ फल वह अपनी पत्नी के लिए भी घर ले जाता था। बंदर तथा मगरमच्छ अब दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। वे बातें करते हुए कभी नहीं थकते थे। वे कभी बर्ड्स के बारे में बात करते, कभी एनिमल्स के बारे में बात करते, तो कभी पास में रहने वाले गांव की, वहां पर वर्षा की कमी के कारण उनकी जो फसल अच्छी नहीं हो रही थी, उनकी कठिनाइयों के बारे में भी बात करते थे। One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual. His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you are so fond of?" "Oh, he is a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" "A nice monkey, I'm sure," replied the wife with obvious sarcasm. "If you ask me, this monkey should be my food. I want to his hurt so much." "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. "I cannot kill a friend, though I would not mind a monkey occasionally for a change of taste." "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him. So you can eat him?" "Never," declared her husband. एक दिन मगरमच्छ जो था वो बंदर के पास अन्य दिनों की तरह जैसे डेली जाता था, उसके पास ज़्यादा समय रुक गया। तो उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी टाइम से उसकी वेट कर रही थी, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी वो देख रेख कर रही थी, और नाराज़ हो गई। वह बोली, "तुम्हारा यह मित्र है कौन जो तुम्हें इतना प्यारा है?" तो क्रोकोडाइल बोलते हैं कि ओह, वह तो बहुत नेक बंदर है। वह एक फलों के वृक्ष पर रहता है और मुझे रोज़ खाने के लिए फल देता है और घर के लिए भी फल भेजता है। तुम मुझसे तो वृक्ष पर चढ़ने की अपेक्षा नहीं कर सकती ना।
तो जो मतलब कि उसकी पत्नी थी वो बड़े ऐसे व्यंग्य स्वर में बोली, मैं मानती हूँ कि वह बहुत अच्छा बंदर है। यदि मुझसे पूछो तो वह बंदर मेरा भोजन बनना चाहिए, मैं उसका दिल खाने के लिए तैयार हूँ। तो जो मगरमच्छ था वो जोर से गुस्से से चिल्लाया कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो, मैं अपने मित्र को नहीं मार सकता, यद्यपि कभी कभी स्वाद बदलने के लिए मैं बंदर खा सकता हूँ। तो जो पत्नी थी उसने आदेश दिया गुस्से, तुम उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ ताकि तुम उसे खा जाओ। मतलब जो उसका हस्बैंड था मगरमच्छ, उसने बोला ताकि तुम उसे खा जाओ, कभी नहीं। उसके पति ने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी कि मैं उसे यहाँ कभी नहीं लेके आऊँगा। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. The crocodile was in a serious dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I will invite the monkey home and hope for the best. तो जो मगरमच्छ था वो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने क्या किया, वो नदी के बिल्कुल एंड तक उसने गोता लगा दिया और वहाँ छिप गई। वह बच्चों को भी छोड़ गई ताकि वे अपने पिता को परेशान करें। तो जो मगरमच्छ था वो काफ़ी दुविधा में फंस गया। उसे अपनी पत्नी भी प्यारी थी, साथ ही वह उसे मित्र भी अपना प्यारा था। अंत में उसने अपनी पत्नी का साथ देने का निर्णय किया। आखिर में उसने अपनी जीवन संगिनी जो थी उसी को ही चुना। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मित्र के साथ विश्वासघात करना एक पाप है, पर मेरे पास अन्य कोई चारा भी तो नहीं है। उसने मन में ये चीज़ सोची। मैं बंदर को आज घर आने के लिए आमंत्रित करूँगा और आशा करता हूँ कि उस रिजल्ट भी इसका अच्छा हो और वो हमारे घर आ जाए। My wife wants you over for a meal, dear friends, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer but can ride on your back. And they set out. In the middle of the river, where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his attention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. अब जो था इसमें मतलब मगरमच्छ ने क्या किया, वो अपने फ्रेंड बंदर से मिलने गया तो उसने अपने दोस्त को ये बता ही दिया कि मेरी पत्नी ने तुम्हें आज भोजन पर घर पर बुलाया है, तुम्हें आज मेरे साथ घर चलना होगा। तो जो बंदर था वो भी बड़ा खुश होकर बोला, पर मैं तैरना तो नहीं जानता, हाँ पर मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊँगा और हम दोनों चल पड़ेंगे। नदी के बीच में जहाँ बिल्कुल पानी की धारा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वहाँ मगरमच्छ जो था वो अपनी उसकी जो इच्छा थी, जो बात थी, वो उसको छिपा नहीं सका। उसने कहा, हे मेरे मित्र, मुझे माफ़ करना, और थोड़ा बहुत संकोच करता हुआ बोला कि पर मुझे अब पानी में गोता लगाना है, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी हत्या करने के लिए लाया हूँ। मेरी पत्नी जो है वो तुम्हारा दिल खाए बिना जीवित नहीं रह सकती, तो इसलिए वो उसे कहते हैं गुड बाय। The monkey was scared and distressed, but he was sensible and clever. Like all monkeys, he kept a cool head. Calmly he said, I had do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of crocodile's wife? But how foolish could you be? Why did not you tell me before? I had have brought my heart along. But where is your heart? Asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. Oh dear, what a mistake. He is the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अब जो मंकी था वो काफ़ी डर गया और वो दुखी भी हो गया, पर वह जो मंकी था काफ़ी इंटेलिजेंट था और समझदार था। सभी बाकी बंदरों की तरह वह आपे से बाहर नहीं हुआ, शांत बना रहा और आराम से बोला, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कोई भी त्याग कर सकता हूँ। तुम ही तो एक मित्र हो। आखिर तुम्हारी पत्नी के जीवन की रक्षा के सामने सिर्फ एक मंकी के दिल की क्या कीमत। पर तुम भी कितने मूर्ख निकले, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं अपना दिल तो साथ लेकर ही नहीं आया, वो तो पेड़ पर ही है।
तो मगरमच्छ ने भी बड़े भोले से ये भोलेपन से पूछा कि तो तुम्हारा दिल है कहाँ? मैं तो सोचता था कि तुम अपना दिल हमेशा अपने साथ ही लेकर चलते हो। तो जो बंदर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वह तो वहाँ वृक्ष पर रखा है। तो चलो हम तुरंत वापस वहाँ जाते हैं और उस दिल को उठा लाते हैं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बड़ी देर से इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रही होगी। तो बंदर ने उसका विश्वास जीतने के लिए ये उत्तर दिया। तो जो मगरमच्छ था वो बोला, ओ प्रिय मित्र, मैंने भी कैसी गलती की। दोनों जोर से हंस दिए जब मगरमच्छ उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उल्टा घूम गया। ऑन द रिवर बैंक द मंकी jumped onto the tree and had a deep sigh of relief. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we would not meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears, which were genuine, and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. नदी तट पर आते ही बंदर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने चैन की लंबी सांस ली। उसने एक दो फल तोड़े और उसको नीचे गिराते हुए बोला, अपनी पत्नी को मेरा दिल खिलाने की बजाय ये फल खिला दो। ताज़ा फल जो होता है वो दिमाग और शरीर के लिए बढ़िया है। वो कहते हैं, गुड बाय मित्र, और यदि बुरा ना मानो तो फिर कभी हम नहीं मिलेंगे दोबारा। मगरमच्छ जो अब अधिक उदास तथा बुद्धिमान हो गया था, उसने कुछ आंसू टपकाए जो असली थे और वह अपने घर की ओर लौट चला गया। उसे घर पहुंचकर क्योंकि उसने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बड़ी जल्दी बतानी थी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।